I've never discussed what quantum Ayurveda is. आयुर्वेदिक डॉक्टर्स क्वांटम फिजिक्स को समझते नहीं है. जो साइंटिस्ट है जो इसको जानते हैं ये लोग आयुर्वेदिक को नहीं समझते. नोबेल प्राइज रिसेंटली इन फिजिक्स इट वाज ऑन क्वांटम टनलिंग. ट्रेडिशनल आयुर्वेदा ओनली दे आर फॉलोइंग द फर्स्ट प्रिंसिपल व्हाट sages were doing, and now this quantum ayurveda is bringing the cosmic energies through the frequencies, and we are trying to improve the efficacy of the product, the bioavailability and the speed by which it has to react. We are not diagnosing anything because this ayurveda doesn't cure anything. भाई कोई नया कुछ कर रहा नहीं मार्केट में. But I was always wanted to do something different in green space. तो ये concept मेरे दिमाग में आया quantum ayurveda. When I formed this company, I didn't have any money with me. Green space है ना, supplements बनाता है, ingredients बनाता है. जैसा यूएस में सबसे बड़ा मार्केट है न्यूट्रास्यूटिकल्स का मार्केट. हमारा कंपनी है साइंस बैक्ड एविडेंस के साथ मार्केट में आया है. हम बताएंगे भाई हम किसी को उल्लू बनाना नहीं चाह रहे. Let's talk about the preventive healthcare. भाई ये सब स्टार्ट होता है फूड से. हम लोग जो खाना खा रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं, जो एयर को ब्रीथ कर रहे हैं, हर चीज में देयर आर इफेक्ट्स. पोल्यूटेंट्स है. जो भी खाना खा रहे हैं हम लोग पेस्टिसाइड्स को लोड कर रहे हैं हमारे हेल्थ में. हर फूड इंग्रेडिएंट्स में पेस्टिसाइड्स को हम लोड कर रहे हैं. भाई कैंसर जैसा बीमारी नहीं आएगी ये अगर हम हेल्थ केयर सिस्टम्स को ठीक कर देते हैं. प्रिवेंटिव मेजर्स है. तो एक्चुअली फ्यूचर ऑफ हीलिंग है क्या? Entire universe is working on frequencies, energies and vibrations. But now connecting at this today's journey, connecting to cosmic energy is highly impossible because we don't have sages of those time. Welcome to Humans of Bombay, Shafi. It's so nice to do this with you in Bangalore. Thank you, Karishma, for this. I'm very excited because we've had lots of people on the podcast talk about Ayurveda. So many different perspectives, many different kind of nuances to Ayurveda. But I've never discussed what quantum Ayurveda is. So I'm very excited. And let's open with that question for our viewers. There is something called quantum Ayurveda. What is it? Yeah, quantum Ayurveda is something, it's not something very new. It was followed 3,500 years back then. But people were not aware of this. And they only followed Ayurveda and they forgot rest of the things. What the sages and munis were doing at that 3,500 years back. Quantum Ayurveda is nothing but the method and the technology where it speaks about quantum physics. This quantum physics talks about frequencies, vibrations, and energies. How these energies can be infused into the ingredients of these herbal extracts. Okay. Is the concept which we came up. How do you simplify that? Like what you just said, it was complicated for me. So I'm sure it's complicated for a lot of people. Yeah. How do you explain it to a layman, right? Yeah. Like what is quantum Ayurveda? Yeah. See, I will just go back 3,500 years back. Those time also people are living in this world and there were only plants. Plants were the media for all the remedies, whatever health issues were happening at that time. The sages and munis were used to follow three principles in that way. First is Aushad, which is called as medicine. Next comes money. Money is nothing but cosmic energy, right? And the third one is mantras. You know, when they were preparing all these medicines and the wellness ingredients, and they were serving all this humanity, they were following these three principles. What happened over the period of time, the evolution take place? People forgot the last two part of the methods and the procedures the sages were following, and everybody stick on to only Ayurveda, only for Aushad. But that doesn't work like that because the entire universe is working on frequencies, energies, and vibrations. We as humans, we also have signature frequencies of each organ in our body, Right. and this has been derived by NASA. NASA has derived this. All the organs have signature frequencies, and these plants also have frequencies. Now, why we should not bring those frequencies together and see how better they can be a result for creating a wellness Okay. solutions for this industry. Okay, so let's take all three, right? Which is Aushad, then there was money, Money, and then there was mantra. mantra. Okay, so Aushad is pretty clear. It's the actual medicine, so to Yes. speak. Yes. Um, How do we bring money into act, right? Yeah, so that's the second one, and the third one is also mantra, which is Yeah. very interesting. So can we touch upon these Yes. two so that we get the context? Yeah. This money is about we speak about cosmic energies. Yeah. Now in today's science, we have so many instruments and equipments where we can measure these frequencies by using Raman spectrophotometer. This is one of the instrument which is
used to study the frequencies of the plants and these energies of the human bodies as well. Now, when we speak about money, how this is related, that is where we came into this concept, bringing this quantum concept into the real life studies, is when we see those people, how they were doing that. Hmm. But now connecting at this today's journey, connecting to cosmic energy is highly impossible because we don't have sages of those time. We have scientists. Scientists can replicate those monies in the form of frequencies, vibrate. And I tell you one interesting thing that Nobel Prize recently was in physics. It was on quantum tunneling. Quantum tunneling. Okay. It says that the waves always has particles and the energy at the same time. What Einstein did is he brought this wave theory, and then Schrodinger proved this theory that waves have both energy and particles at the same time. Hmm. So this is the concept which we have used in quantum Ayurveda. Okay. So we are trying to infuse these energies into the ingredients, where the ingredients are being put into lattice of the molecule, and this energy stays there in the molecule until it is ingested in our body. Okay. So basically, it's like supercharging the plants that you're consuming in the form of Ayurveda. Yeah. It's not the plants. See, what we do here is we are working with the extracts. So whatever, like, very popular extracts are available in the market is like ashwagandha, you have curcumin. These are all branded ingredients now flooding in the market. Now, what we did is we took these branded ingredients and we studied their protocol, how they are using it in a day-to-day life. Many people are doing me-to-me products of this similar kind, and they're just playing with the dosage. Some company says it is 500 milligram per dosage per day as a nutraceutical they have to consume, and there are good benefits of the health. If we take a quantum Ayurveda product, right, this dosage has minimized from 500 milligrams to somewhere 25 to 30 milligrams. Why? So, because of the energy infused inside it. You don't have to consume 500 milligrams and dose, with the nutraceuticals. More products you don't have to take. But this technology has evolved such a way that, and we are very fascinated about seeing our results, the clinical studies which has done on these ingredients. The results are amazing. Here, you might be surprised to see that how these energies after ingestion, how these energies are being transferred into a particular organ or where whatever the segments is there. See, this is again playing that role. Schrodinger law, what I said. This is an energy related ingredient, which the energy has been carried by the ingredient and reaches the receptors of the body. And it clears the path because we know everybody that there are a lot of ROS, that is reactive oxygen species. This is the one which always, is a hindrance in the process of healing or in the process of giving better health. But when you take this quantum Ayurveda ingredient, this surpasses all the pathways and reaches the target organ at a very lesser time and with a minimum dosage. This is the breakthrough which I wanted to do in these ingredients. It's not the plant, it's the extract what we are using. Okay. So we'll come back to this and talk a little bit more. But to give our viewers a closure, let's also talk about the third aspect, which is mantras. Let's close that conversation and then we'll move more into green space herbs. Yeah, mantras, now it's very difficult for us to follow these mantras because we followed the Aushad and we followed the cosmic. Now, mantras is very difficult because it can be personalized. Mantras can be personalized for an individual person. But when you do a mass commercial production, how do you do this? So we are still finding answers for this. At present, we have touched the second part of that. Third part, I think definitely we'll work on something. But what was it back 3,500 years ago? What did it mean? Yeah, see, the mantras also carried energies. For example, when people do meditation, chanting, meditations as well, there is a word called as Om, right? What does it mean? The Om has got particular energy. I'm not talking any specific religion or anything like that. But even in Islam also, there are a couple of verses where it speaks about energy. Individual word also has frequency. I tell you, when there is a conversation happening,
between couple of people, you suddenly feel that this guy is not okay to me. Like there's something The negative. conversation, or, yes. Yeah. Sometimes the conversation doesn't go well. The energies doesn't go well with your energy. That is because your energies are not matching. They're not synchronizing each other. Know that the repulsion is happening. That means the energy is not matching. Energy is not synchronizing. Energy is not harmonizing it together. That is, sometimes you see a people which you feel very amazed. You feel very close. Yeah, these guys look amazing. Can we do some better conversations with him? That is because the energy is playing an important role. It plays important role on your mind, on your body, everything. That is the key role here. Got it. So we've understood these three components. Let's now ask a question that our viewers may have, right? What is the difference between quantum Ayurveda and traditional Ayurveda? Is it the same? Is it different? Yeah. Here, traditional Ayurveda, that's what I said. Now, people, they call traditional Ayurveda, only they are following the first principle, what sages were doing. Which is the medicine. The medicine. Correct. Second and third, they have forgotten. And now this quantum Ayurveda is bringing the cosmic energies through the frequencies. We have a beautiful setup lab where it is called as aeronautic labs are there, where we have acoustic chambers. In that acoustic chambers, our ingredients have been placed in that chamber, and then the frequency of this extract, the same frequency, is been released into those extracts, and there is a harmonization which is taking place, and then the energy is getting infused into the ingredient molecules and the lattice. So this is the difference. The traditional Ayurveda is following only Ayurveda. They're not following other things. And the second part of this we are trying to do, and we are trying to improve the efficacy of the product, the bioavailability, and the speed by which it has to react. We are not diagnosing anything because this Ayurveda doesn't cure anything. A lot of studies are going on. But we are working on nutraceutical products. How do we make people's life better by doing preventive healthcare measures? Okay. So now if you had to explain to our viewers what Greenspace Herbs actually does. The Greenspace company was formed in 2005 and 6. When I formed this company, I didn't have any money with me. Earlier, after my engineering education, then I joined myself and my brothers. We had one company called as Purnashri Chemicals Private Limited. I joined there and I learned all these herbal extract manufacturing techniques. And I was a fresh graduate. I was very inquisitive to learn things like that. I'm an industrial production engineer and where this herbal. It was totally two different phases of the coin. Then when they came, they taught me. That is when I had magic in me. And I said, I really meant for only doing these natural things in life. वो एक टर्निंग मोमेंट था मेरे लाइफ में. हमने वहाँ पे आई लर्न अराउंड 70 डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ हर्बल एक्सट्रैक्शंस मेथड स्टैंडर्डाइजेशन सब करके एक ऐसा सिचुएशन आया लाइफ में. I had to walk out from my brother's company in 2005 and I wanted to start my own because I had a vision at that time. I wanted to do something good for humanity with the wellness. जो हम लोग हेल्थ पे काम कर रहे हैं तो मुझे कुछ ऐसा चीज़ देना है दुनिया में ये सब लोग याद करें. That was the concept. 2005 में जब when I came back, when I wanted to start this company, I didn't have any money in me. I only had good friends, relatives, and my mom gave me 1 lakh rupees. I told my mom, hey mom, look, no, I'm not going to work there. I want to do something differently. I want to come out. And my mom said, what do you want to do? How we are going to do this, establish this new industry and things like that. She gave me 1 lakh rupees. This I'm talking about 2005. उस 1 लाख रुपए में मैंने आधा एकड़ का ज़मीन खरीदा. पैसा कुछ भी नहीं था मेरे पास. फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और दोस्तों ने सब मिल के मुझे थोड़ा पैसा दिया. धीरे धीरे करके मैंने एक कंपनी को खड़ा किया. इट वॉज अ वेरी नॉमिनल कंपनी एट दैट टाइम. हमारे एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर, एक नेचुरल रेमेडीज एक कंपनी है. The chairman is a very close friend of mine because I had worked in the past with them and knowing technologies. I have worked with the scientists and all. They knew the potential of me, what I am capable of doing things. उनको पता चला कि मैं दूसरा कंपनी चला. मेरे पास पैसा नहीं था. मैं जाके उनसे पूछा, सर ऐसा है. Without asking anything, he gave me 10 lakhs rupees check and he said, जब तेरे को देने को वापस मन करता है तब दे देना. Then I took that money. I did little more improved in my infrastructures and things like that.
Journey was a learning for me from 2005. It was not easy work for me because already there were many players in the segment, and I was doing only contract manufacturing. वहाँ पे एक ऐसा बात हुआ, एक सिचुएशन लाइफ में ऐसा, अभी सब फैक्ट्री सब स्टार्ट हो गया, अभी हम लोगों को एक प्रोडक्ट बनाना था, बोसविला सेराटा एक एक्सट्रैक्ट बनाना था। उसके लिए ड्रायर्स सब आ गए थे। ड्रायर्स के अंदर आपको यू विल हैव ट्रेज, ड्राइंग पैन्स होते हैं, वो पैन लाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं था। I had a car with me, Alto a car. I sold that car. I got 1.7 lakhs. And with that money, ये ट्रेज सभी ला के हमने पहला प्रोडक्ट है ना गार्सिया बोसविला सेराटा का प्रेसिपिटेट किया। ये जर्नी सिर्फ हम लोग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए करते रहे। बीच बीच में बहुत ऑब्स्टेकल्स आए मुझे। I had to undergo a lot of pain with regard to financials and with regard to not getting orders regularly on time. And running a factory is not a small thing. You have overheads, the fixed overheads, like salaries, all these things. It was very difficult. There was always ups and downs in my business for almost, I think, 15, 20 years. And I have learned many lessons during this journey. I don't say it is a failure. It is a learning path. You know, every failure teaches you something, what you can do much better in your life. तो 3 साल पहले मुझे ग्रीन स्पेस में एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिमाग में आया। मैं जब भी when I used to walk around and attend all these expos and all, वहाँ पे मैं सबको देखता हूँ कि एक दूसरे को वही ब्रांड इंग्रेडिएंट बना रहे हैं, वही उस पर कर रहे हैं, वही उसमें कुछ कर रहे हैं, भाई कोई नया कुछ कर रहा नहीं मार्केट में। बट आई वॉज ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग डिफरेंट इन ग्रीन स्पेस हाउस। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया, क्वांटम आयुर्वेदा, बिकॉज दैट वॉज 3 years डाउन, it was a trending word, quantum. Wherever you see, there are quantum. And now one of my daughters says, how it is good that when we say it is quantum food now. Food also can be energized now. That is again a concept. It is a vast field. We can go into any subjects. We can go into any areas where you can play around with frequencies and vibrations, things like that. ये ग्रीन स्पेस का जर्नी 3 साल पहले हम लोगों को बहुत सिखाया। वी लर्न लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई एम वेरी थैंकफुल दैट मेरा टीम इतना हम्बल है, इतना हॉनेस्ट है। और इट विल नॉट बी सरप्राइज टू से द पर्सन्स हु जॉइन्ड इन 2005 टिल टुडे nobody has walked away from my company. Now today I have 80 people working around me, all scientists, the employees. They all with me during my bad days. They stood with me, they supported me. I didn't have money to pay the salaries for 3 months. They used to come and stand in front of me and ask, sir, we don't have money. हम कैसा हमारा फैमिली को, how will we feed them? What is the situation? मुझे उनको बात करके भेजने के बाद में अकेला मेरे ऑफिस के टेबल पर बैठ के मैं रोता था। इतना स्ट्रगल, इतना पेन जाता। मेरे दिल से एक दुआ भी निकलती थी तब कि भाई ऊपर वाला देख रहा है तो मुझे स्ट्रेंथ भी दे, इन लोग का सैलरी देने का मुझे स्ट्रेंथ है, बिकॉज गिव मी ऑर्डर्स, गिव मी समथिंग विच आई वांट टू डू इन माय लाइफ, यू हेल्प मी, यू ओपन अप माय पाथ। तो मैं ऐसा दुआ करता था बैठ के। तो इसका नतीजा ऐसा हुआ कि ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट निकल आया क्वांटम आयुर्वेदा का। ये दुनिया में पहली बार ग्रीन स्पेस हब ने इसको इवॉल्व किया और इससे बहुत सारा डोर्स ओपनिंग हो गया पूरे साइंटिस्ट को, पूरे दुनिया में इसके ऊपर काम करने का एक प्लेटफॉर्म मिल गया। Wow, that's amazing. So, अगर लोग जानना चाहे कि ग्रीन स्पेस हर्ब्स एक्चुअली करता क्या है, how do you explain that? ग्रीन स्पेस हम लोग पहले सिर्फ जेनरिक एक्सट्रैक्ट्स बनाते थे। 2005-06 से हमने स्टार्ट किया। वी वर डूइंग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फॉर नेचुरल रेमेडीज। वी डिड सम वेटरनरी हेल्थ प्रोडक्ट्स ऑल्सो उनको, और उसके साथ साथ में हम जेनरिक एक्सट्रैक्ट्स भी बनाते थे। बट एंड वी वर गिविंग इट टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स यहाँ इंडिया में। उन लोग हमारा माल लेके उनका लेबल लगा के एक्सपोर्ट करते थे, बिकॉज हमारे पास फाइनेंशियल सपोर्ट्स नहीं था। बीच में एक ऐसा इंसिडेंट भी हो गया, बिकॉज आई हैड टेकन अ बैंक लोन 2011-12 पे। एक ऐसा एक प्रोडक्ट हमने बनाए थे विच वॉज वेरी वेल नोन, कोलियस फोर्सकोलिन करके एक एक्सट्रैक्ट बनाए थे। उसका धीरे धीरे मार्केट का प्राइस बढ़ते चला गया एंड इट हैज़ रीच द पीक ऑफ 13,500 पर kg। जैसा हमारे पास लोन आया था, हमने पूरा उसको रॉ मटेरियल पे पैसा लगा दिया। लगा के हम लोग सब एक्सट्रैक्ट बना के, हमारे पास एक्सट्रैक्ट
रख दिए थे 1-2 टन का एक्सट्रैक्ट, बट मार्केट ना धीरे 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 स्लैश हो गया। देन हम लोगों को 3,500 रुपये में उसको बेचना पड़ा। दैट वाज द बिगेस्ट ब्लो, द सेकेंड ब्लो विच वी हैड। एंड बैंक का लोन था, एक प्रॉपर्टी था, उसको बेचे, बैंक का लोन क्लियर किए, एंड फिर 3 महीना हम लोग खामोश बैठे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या प्रोडक्ट बनाऊँ अभी। तो इससे लर्निंग हुआ कि भाई जैसा मार्केट है उसको डीपली स्टडी करना, इसको फोरकास्ट ठीक से करना, जहाँ मार्केट में स्टेबल है उसको प्रोडक्ट्स को हम लॉन्च करना है, ऐसा अग्रेसिवली वी शुड नॉट गो। देयर लॉट ऑफ लेसन्स वी लर्न ये करने के बाद। तो उसके बाद में धीरे धीरे करके हम लोग इस पे आए। अभी 3 साल से हमारा कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फोकस कर रहा है। वी हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड अराउंड $2 million in our research, in our infrastructures, in renting out the aerospace labs for all our experiments and all. ये करने के बाद में then we have already launched this product now. ऐसे बड़े कंपनीज के साथ हमारा बातचीत हो रहा है ऑलरेडी, एंड we have some very good clients which they are shortly they are going to launch these products into the market. इसका ट्रेंड ही कुछ अलग है। अभी पूरा न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री को ये क्वांटम के बारे। और एक अमेजिंग बात मैं इधर बोलना चाहता हूँ। हमने लास वेगस लास्ट ईयर नवंबर में हमने लॉन्च किया इस क्वांटम आयुर्वेदा इंग्रेडिएंट्स को। उसके बाद 2-3 महीने के बाद ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है, उन्होंने वाइट पेपर रिलीज किया क्वांटम आयुर्वेदा के बारे में। हम लोग 3 साल पहले ही रिसर्च कर रहे थे, हमने प्रोडक्ट भी इंग्रेडिएंट को लॉन्च किए। अभी इंडियन गवर्नमेंट इज स्पीकिंग अबाउट क्वांटम आयुर्वेदा। ये क्यों लाना चाह रहे हैं? बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट को मालूम है सेजेस क्या कर रहे थे। बिकॉज आयुर्वेदा इज अ स्ट्रॉन्ग होल्ड इन इंडिया। आयुर्वेदा इवॉल्व हुआ इंडिया से। तो ICMR में क्या कर रहे हैं इन लोग? दे वांट टू क्रिएट द इकोसिस्टम। फार्मर्स को ला रहे हैं, फार्मर्स को जिन जिन मेडिसिनल प्लांट्स को ग्रो करना है उनके हाथ से ग्रो कराएंगे। एक्सट्रैक्ट कंपनीज के साथ टाइप कराएंगे। देन एनर्जी इन्फ्यूज़ करने के कंपनी के साथ करेंगे। तो पूरा इकोसिस्टम को खड़ा करके इंडिया को ग्लोबल लेवल लेके जाके $100 बिलियन का हमने 2030 तक रीच करने का वादा किया है। ओके। हम अकेले अचीव नहीं कर रहे हैं, पूरा इंडस्ट्री को हम साथ में लेके जा रहे हैं। तो इंडिया में बहुत सारे आयुर्वेदा कंपनीज है, राइट? बट हर एक की कोई USP है। What does Greenspace exactly do, and how are you different from the other Ayurveda companies? Yeah, Greenspace सप्लीमेंट्स पे काम करता है बिकॉज इट वर्क्स ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। हम लोग कोई ड्रग्स या मेडिसिन नहीं बनाते। ट्रेडिशनल आयुर्वेदा कंपनीज बहुत सारे इंडिया में है जो दवा बनाती है। जैसा हर सेगमेंट के लिए दवा बनाती है। दे आर टारगेटिंग ऑन दी मेडिसिन। जिस बीमारी के लिए मेडिसिन चाहिए उस बीमारी को मेडिसिन, जैसा फैटी लीवर है, जैसा आपको ब्रीदिंग में ब्रोंकाइटिस है, आपको कॉफ एंड कोल्ड है, तो इसमें आयुर्वेदा का वो मेडिसिन बनाते हैं दैट इज़ फॉर क्यूरिंग दी एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स इन द बॉडी। बट ग्रीनस्पेस कोई मेडिसिन नहीं बनाता है। ग्रीनस्पेस है ना सप्लीमेंट्स बनाता है, इंग्रेडिएंट्स बनाता है। जैसा US में सबसे बड़ा मार्केट है न्यूट्रास्यूटिकल्स का मार्केट, जहाँ पे इस इंग्रेडिएंट्स को, इस सप्लीमेंट्स को वो डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। So difference is preventive versus cure. Cure, yes, absolutely. These are the two. These are the two segments. हम लोग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के ऊपर फोकस करते हैं। हम लोग कोई दवा नहीं बनाते हैं, लेकिन जो अदर डिपार्टमेंट है, जो अदर एरिया है, उन लोग मेडिसिन बनाते हैं। Got it. तो let's talk about the preventive health care, right? Which is actually a afterthought. लोग बीमार पड़ते हैं, फिर सोचते हैं कि हेल्थ के बारे में क्या करना चाहिए, whereas it should be a lifelong process. How are your supplements different and how are they effective? Yeah. अभी आज के दुनिया में सप्लीमेंट्स एक बहुत ज़रूरी हिस्सा बन गया ज़िंदगी में। Why? Because हम लोग जो खाना खा रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं, जो हम लोग जो एयर को ब्रीथ कर रहे हैं, हर चीज़ में देयर आर इफेक्ट्स। पोल्यूटेंट्स है, जो भी खाना खा रहे हैं हम लोग पेस्टिसाइड्स को लोड कर रहे हैं दुनिया में। हमारे हेल्थ में हर फूड इंग्रेडिएंट्स में पेस्टिसाइड्स को हम लोड कर रहे हैं। जैसे यूरिया है, जैसा डिफरेंट केमिकल जो US में बैंड हुआ है, उस यूरिया को हमारे फार्मर्स ने इस्तेमाल करके उसको रेडी कर रहे हैं। तो ये सब खाने से लॉन्ग टर्म में किडनी और लिवर को इफेक्ट करता है, डाइजेशन, आपका मेटाबॉलिक हेल्थ इफेक्ट करता है। तो ग्रीनस्पेस हर्ब्स क्या करना चाह रहा है इसमें,
जो ये लॉन्ग रन पे जो ये फूड खा रहे हैं, राइट, उसमें से उनको हेल्थ के लिए दिक्कत हो रहा है। तो इसको हम है ना हमारे इंग्रेडिएंट से उसको सप्लीमेंट जैसा हम देके भाई उसको एक रेमेडी बना के क्या हम उस पेस्टिसाइड्स को या कुछ एफ्लुएंट्स को हम लोग क्या एक्सट्रीट कर सकते हैं क्या, हम्म, ये एरिया पे हम लोग काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी पूरा दुनिया में कैंसर जैसा ट्रीटमेंट के लिए क्यूर करने के लिए भागे दौड़े हुए मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ रुपीज दे आर स्पेंडिंग ऑन क्यूरिंग। किसी ने सोचा नहीं कि प्रिवेंटिव के लिए क्या करना है, हम्म, कैसे हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, कैसा हम इंसान का हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, हाउ वी कैन इम्प्रूव देयर हेल्थ। भाई ये सब स्टार्ट होता है फूड से। आयुर्वेदा का एक बहुत बड़ा सबके दिमाग में एक एक बात है, हम्म, आयुर्वेदा जो भी बनाता है उसका हैवी मेटल्स बहुत ज़्यादा है, उसके लिए वो खाना ठीक नहीं है, वो सेफ नहीं है करके बहुत सारे फार्मा कंपनी से बताते हैं। मुझे बताओ एक बात, आप हर दिन आप पेस्टिसाइड प्रोन फूड खा रहे हैं, भाई इसका कोई मतलब नहीं है जी। हर जड़ का जो प्रॉब्लम है ये फूड से ही शुरू होता है, जो हम इसको कोई पाबंदी नहीं लगा रहे, इसके ऊपर हम ध्यान देंगे तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के ऊपर हम लोग नए नए इंग्रेडिएंट्स बना के हम लोग हेल्थ के लिए अच्छा सा काम कर सकते हैं। एक सबसे बड़ी बात ये हम लोग साइंटिस्ट को भी एक बात बताना चाहिए, यहाँ पे जो भी देख रहे हैं साइंटिस्ट है, कुछ ऐसा चीज़ निकालिए आप जो खाने को तो कोई नहीं रोक सकता। भाई अब हर आदमी को आप ऑर्गेनिक फूड खाओ करके बताएंगे तो वो कहाँ से खाएगा, ऑर्गेनिक फूड इज़ एक्सपेंसिव। तो हम इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। भाई जब ये फूड इन खा रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म में ये क्या इफेक्ट कर रहा है इंसान की ज़िंदगी में, हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है। तो इन सब हेल्थ के लिए पेस्टिसाइड्स या जो भी हैवी मेटल्स है इसको हम कैसे हेल्थ से बाहर निकाल सकते हैं। भाई इस पे कोई रिसर्च करे, कोई अच्छा सा काम करे, भाई ये सब प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे आ जाएगा। समझिए अब एक 10-20 साल के ऊपर लोग बीमारी नहीं पड़ते, भाई कैंसर जैसा बीमारी नहीं आएगी। ये अगर हम हेल्थ केयर सिस्टम्स को ठीक कर देते हैं प्रिवेंटिव मेजर से, भाई सबका जिंदगी अच्छा है, एवरीबडी विल फील हैप्पी टू लिव देयर लाइफ। yeah. So these supplements are made using quantum Ayurveda, which is that वो जो energy या charge आप कह रहे थे वो आप कर देते हैं। तो can you give me an example of some supplements जिनके results आपने देखे हैं and you're like, wow, this is drastically different from uh, traditional Ayurveda medicines or from other supplements that you get in the market? या देखिए, ये जो हम क्वांटम आयुर्वेदा का जो एनर्जी इन्फ्यूज करके जो हम लोग सप्लीमेंट्स बनाए हैं, इस सप्लीमेंट का 3 एडवांटेजेस है। एक एडवांटेजेस है डोसेज के ऊपर काम करना। डोसेज मतलब जो भी आयुर्वेदिक का जो भी मेडिसिन या वेलनेस का जो प्रोडक्ट्स है मार्केट में, उनका एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, भाई इतना mg आप ले लो, 500 मिलीग्राम लो, 1 ग्राम ले लो, आप ठीक हो जाएंगे। भाई इसके ऊपर कोई स्टडी नहीं किए हैं। स्टडी मतलब बायो अवेलेबिलिटी और बायो सेंसिटिविटी 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, उस पर कोई नहीं गया। हम लोग क्या कर रहे हैं, एनर्जी के इन्फ्यूज़ होने के वजह से आपको 500 मिलीग्राम खाने की ज़रूरत नहीं है। द सेम इफेक्ट व्हाट दे आर क्लेमिंग 25 मिलीग्राम या 30 मिलीग्राम खाने से आपको सेम इफेक्ट मिल जाएगा। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा जो है इसका जो, जैसा मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, हमारा सप्लीमेंट F1 कार जैसा है। अब जो F1 कार को कोई भी बीट नहीं कर सकता, मर्सिडीज बेंज हो या कोई भी बड़ा गाड़ी हो जो ट्रैक पे जाता है तो उसका स्पीड बहुत ज़्यादा है। ये एनर्जी इन्फ्यूज्ड इंग्रेडिएंट सप्लीमेंट जो हम बना रहे हैं इसका स्पीड ज़्यादा है, तो ये टारगेटेड ऑर्गन के ऊपर बहुत जल्दी असर करता है। Okay. And any example of ऐसा एक supplement जो या हमने एक ले लेते एग्जाम्पल कर्क्यूमिन का ही। कर्क्यूमिन ये टर्मरिक है, कर्क्यूमिन एक्सट्रैक्ट इज कॉल्ड टर्मरिक। और अश्वगंधा है, जो ये तो बहुत पॉपुलर इंग्रेडिएंट्स है, पूरे दुनिया में सब लोग खा रहे हैं। अश्वगंधा इज फॉर हेयर, मैंने अश्वगंधा का कोरिलेशन नहीं हेयर के साथ देखा है। नहीं नहीं, अश्वगंधा हर चीज़ पे है, एंटीऑक्सीडेंट है, हर इस पे काम कर रहा है अश्वगंधा। Okay. एंड मेल स्ट्रेंथ के लिए भी अश्वगंधा यूज़ करते हैं। तो बहुत सारा एरियाज है जहाँ पे अश्वगंधा काम करता है। लेकिन इसका जो हमने जब क्लिनिकल स्टडी किया, हाउ वी आर डिफरेंट आवर इंग्रेडिएंट देन कंपेयर टू जो भी मार्केट में जो इंग्रेडिएंट्स है, इसका 2-3 है। हम लोग क्लिनिकल स्टडीज़ किए ह्यूमन के ऊपर, कम डोज के ऊपर इसका इफेक्ट कितना ज़्यादा है हमने वो प्रूव किए हैं। हम लोग एविडेंस के साथ, हमारा कंपनी है साइंस बैक्ड एविडेंस के साथ मार्केट में आया है। हम बताएंगे भाई, हम किसी को उल्लू बनाना नहीं चाह रहे इधर। हम लोग बता रहे हैं कि भाई हमारा इंग्रेडिएंट ये कम इस्तेमाल करने से, यहाँ से 2 चीज़ है,
कम में इस्तेमाल करेंगे तो आपका डोसेज कम हो जाएगा. यू आर नॉट अननेसेसरी आपके स्टमक को, आपको बॉडी को अननेसेसरी सप्लीमेंट्स को आपको लोड नहीं करना पड़ेगा. यूएस में एक आदमी 15 से 20 कैप्सूल्स खाता है हर दिन. क्यों खाता है उतना? उतना ज़रूरत है ही नहीं. बॉडी उतना एक्सेप्ट करेगा ही नहीं. तो इसके लिए हम लोग ये क्वांटम आयुर्वेदा कॉन्सेप्ट में जो एनर्जी इन्फ्यूज्ड इंग्रेडिएंट्स है, इससे हम स्मॉलर डोसेज देंगे. अब आप डे टू डे लाइफ पे देखो, हम लोग हमारे फूड में टर्मरिक यूज़ करते हैं, हम लोग स्पाइसेस यूज़ करते हैं. भाई इस सब में एक रीज़न है. हम लोगों को खाना जब खाते हैं तो टर्मरिक का पूरे सालने में एक आधा स्पून टीस्पून का पाउडर डालते हैं भाई. उसमें क्या है, कर्क्यूमिन का जो रॉ मटेरियल है उसमें 4% कर्क्यूमिनॉइड्स रहता है रॉ मटेरियल. उसको ग्राइंड करके पाउडर करके हम यूज़ करते हैं. जब हम खाने में इस्तेमाल करते हैं तो इट बिकम्स नैनो मिलीग्राम्स यूसेज इनटेक एवरी डे. वो लिमिट है हमारा बॉडी का. नेचर हमको सिखा रहा है भी तुम क्या खाना चाहिए. हम है ना उसको छोड़ के सप्लीमेंट को लोड कर रहे हैं जो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगा. ये डिफरेंस है इंग्रेडिएंट इन्फ्यूज्ड इंग्रेडिएंट्स का और हमारे इस्तेमाल का. ओके, तो इस एंटायर प्रोसेस का बिजनेस मॉडल क्या है? इज इट B2B, D2C, इज इट? या अभी हम लोग है ना B2B कर रहे हैं, बिजनेस टू बिजनेस कर रहे हैं. बिकॉज अभी हमारा खुद का जो है इंडिविजुअल प्रोडक्ट अभी हम नहीं बनाए हैं, बट वी आर गोइंग इन द सेकेंड स्टेज ऑफ आवर बिजनेस मॉडल. अभी हम B2B कर रहे हैं. मतलब हमारा जो इंग्रेडिएंट्स है इन्फ्यूज इंग्रेडिएंट है, जो ब्रांडेड कंपनीज है जैसा हिमालय है, डाबर है, टाटा 1mg है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. और यूएस में बहुत सारा कंपनीज है जैसा गोली है, जैसा वॉलमार्ट है, जैसा कॉस्को है. ये सब बड़े बड़े कंपनीज है ना, ये इंग्रेडिएंट्स को खरीदते हैं. जो ये इंग्रेडिएंट लेके उनका जो फार्मूला में जो भी आप अश्वगंधा यूज़ कर रहे हैं, ब्रांडेड इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं, जेनेरिक यूज़ कर रहे हैं, उसको छोड़ के अगर हम क्वांटम आयुर्वेदा का इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं तो उनको बहुत सारा फ़ायदा होएगा. इससे कॉस्ट भी कम हो जाएगा, उनका डोसेज भी कम हो जाएगा. भाई सबसे बड़ा है डोसेज. आप हर दिन 10-15 कैप्सूल खाओ बोले तो इंसान कितना दिन खाएगा? तंग आ जाएगा यार. तो जिंदगी नहीं चाहिए यार. ये सप्लीमेंट है, खाना थोड़ी ना खा रहे हैं, खाली गोलियां खा रहे हैं हम लोग. तो ये कॉन्सेप्ट है ना, इसको हम हटा सकते हैं. भाई जैसे खाना है तो मिनिमम खाओ ना, आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है. So, what are the numbers been year on year? Because like you said, right, बहुत ही अपकमिंग इंडस्ट्री है, यूएस में तो बहुत ही बड़ा मार्केट है. तो आपके नंबर्स कैसे रहे हैं year on year? या अभी हम लोग रिसेंटली इसको लॉन्च किया है. अभी हमारे पास इंक्वायरीज ऑर्डर्स अभी है ना, हमारे पास 2 मिलियन का ऑर्डर का हमारे पास रेडी है अभी. 2026-27 तक, अगले साल तक हमारे को $20 मिलियन का हम लोग फोकस कर रहे हैं. हम लोग इंडिया में भी इस प्रोडक्ट को ला रहे हैं, इंग्रेडिएंट को. बिकॉज आयुर्वेदा इंडिया से आए तो हम पहले इंडिया वालों का हेल्थ का ख्याल करना ना, हम लोग यूएस नहीं जा रहे हैं अभी. तो दोनों मिला के हमारा नेक्स्ट अनदर 5 years में हमारा कंपनी का जो सेल्स हम जो पिक्चराइज किए हैं अभी, एक $100 बिलियन कंपनी बनाने का इरादा है. वाओ. और स्टार्टअप कैपिटल कितना था? ये कंपनी क्योंकि ग्रीन स्पेस बहुत पुराना कंपनी है, 2005-06 में स्टार्ट हुआ और रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर्स बिल्ड किए हैं और फैसिलिटीज़ हैं. हमारे पास अच्छे अच्छे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स काम, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स. ये देखिए मैजिक, यहाँ पे दोनों को हम साथ में जोड़ रहे हैं. आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ये क्वांटम फिजिक्स को समझते नहीं है. जो साइंटिस्ट है जो इसको जानते हैं, ये लोग आयुर्वेदिक को नहीं समझते. तो हम दोनों को है ना शादी कर दिया है हमारे कंपनी में. वी हैव मेड देम टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, द प्रोसेस कैसा करना है. और इतना बेहतरीन काम हो रहा है दोनों ने मिलके. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं. मुझे नहीं मालूम अगर बोलना है नहीं बोलना है. हम लोग एक तुलसी का एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं. तुलसी का okay. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हमने डेवलप किया है. स्ट्रेस के ऊपर हम काम कर रहे हैं. तो अगर हम प्लांट को स्ट्रेस देते हैं तो इसका आउटकम क्या होता है. जो इसी फैक्टर को लेके इंसान के ऊपर भी हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. जो इंसान का जब स्ट्रेस बिल्ड होता है तो इसके जिस्म में क्या क्या चीज़ें आ सकते हैं और वो कैसे इसको मैनेज कर सकता है. तो ये कॉन्सेप्ट के ऊपर भी काम कर रहे हैं. वाओ. और स्ट्रेस बहुत ही रेलेवेंट है क्योंकि हर किसी को स्ट्रेस तो है ही. एब्सोल्युटली. ओके. एट व्हाट पॉइंट डू यू बिकम प्रॉफिटेबल? आई थिंक अगले साल 2026-27 में प्रॉफिटेबल हो जाना चाहिए. बिकॉज हमने जितने भी
हम लोग और एक क्या है, जितना भी रेवेन्यूज आ रहा है अभी हमारा, इसका 60% का जो रेवेन्यूज है हम रिसर्च पे लगा रहे हैं, बिकॉज हम लोग बहुत ही डिफरेंट वर्टिकल्स पे काम कर रहे हैं। क्वांटम आयुर्वेदा एक शुरुआत है अभी बस, बट इसमें बहुत एरियाज जो गैप्स है जहाँ हम लोग सब लोग काम कर सकते हैं, और इस दुनिया को अगले 10-20 साल में एक बेहतरीन लाइफ दे सकते हैं सब इंडिविजुअल्स को। और एनर्जी इस सब का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट? ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ क्वांटम आयुर्वेदा। जो कॉन्सेप्ट है दिनचर्या और ऋतुचर्या, डज इट एक्चुअली एग्जिस्ट? डज इट चेंज योर एनर्जी लेवल्स? या ये एनर्जीज ना जिस पे हम लोग अभी काम नहीं किए हैं, बट मुझे जो लग रहा है कि एनर्जीज हर टाइम पे काम करता है। अभी देखिए मॉर्निंग जैसा सन राइज होएगा, जब उसका जो अल्ट्रा वायलेट रेज आता है तो उसका भी एनर्जीज है। जब वो धीरे धीरे 12-1 बजे तक आ जाएगा तो उसका इंटेंसिटी बहुत हाई रहता है, तो उसका एनर्जीज भी अलग रहता है। जैसे ही शाम जाएगा तो ये एनर्जीज भी है ना, प्लांट्स के ऊपर और इंसान के ऊपर भी काम करता है। तो वी शुड बी अवेयर ऑफ ऑल द थिंग्स विच इज हैपनिंग। तो ये हम लोग क्वांटम आयुर्वेदा का नेक्स्ट रिसर्च है कि भाई इसके ऊपर भी हम कैसे काम कर सकते हैं। और व्हाट डू यू सी एज द फ्यूचर ऑफ क्वांटम आयुर्वेदा? क्योंकि आयुर्वेदा तो सब रिलेट जानते हैं। करते हैं इंडिया से, लाइक इंडिया इज द होम ऑफ आयुर्वेदा। करेक्ट। व्हाट अबाउट क्वांटम आयुर्वेदा? देखिए हम ग्रीन स्पेस में जब भी इस कॉन्सेप्ट को लेके आए, हम लोग सिर्फ हमारे पास इस कॉन्सेप्ट को रखना करके ऐसा नहीं था। हमने कॉन्सेप्ट को इग्नाइट किया है क्वांटम को। इसमें कोई बड़ा साइंस नहीं है, बट इस पे काम करते जाएंगे तो बहुत ही बड़ा बेनिफिशियल होएगा इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजीज विच वी आर ब्रिंगिंग सप्लीमेंट इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री आप देखिए, साउथ अफ्रीका में भी आपको मेडिसिनल प्लांट्स मिलेगा, पूरे दुनिया में हर जगह मेडिसिनल प्लांट्स मिलेंगे। ये इंटेल है जो क्वांटम आयुर्वेदा का, उस मेडिसिनल प्लांट का एक्सट्रैक्ट को भी हम एनर्जी इन्फ्यूज कर सकते हैं। हम लोग ऑलरेडी 25,000 हर्बल मेडिसिनल प्लांट्स का सिग्नेचर फ्रीक्वेंसीज हमने डिराइव कर लिया ऑलरेडी। इसका एग्जांपल दीजिए। जैसा आप सपोज मान लो कर्क्यूमिन का 5 हर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी है, राइट? अभी 5 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी जो बॉडी में, हमारे जो बॉडी का जो भी पार्ट का जो 5 फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज का आता है, तो इस इंग्रेडिएंट ने बॉडी में जाके जहाँ जहाँ वो 5 हर्ट्ज का जो ऑर्गन है उस पर जाके वो काम करता है। तो सेम फ्रीक्वेंसी वो सेम फ्रीक्वेंसी से जाके हार्मोनाइज हो जाता है। अब ना वो फिर साइंस चला जाऊंगा, मैं ज़्यादा साइंस बात नहीं करना चाहता हूँ। सिंपलीफाई करके बात करते हैं। ये अब एक हाथ से तो थाली नहीं बजती, जो एक हाथ दूसरा हाथ है जब मार देते हैं तो लो, इसमें जो इम्पैक्ट जितना आएगा उतना आवाज़ आएगा। तो ये फ्रीक्वेंसीज भी ऐसे ही काम करते हैं। जो इंग्रेडिएंट का फ्रीक्वेंसी है, जो ऑर्गन का फ्रीक्वेंसी, जब दोनों जुड़ जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट अच्छा रहता है। मतलब द आउटकम रिजल्ट्स आर मोर बेनिफिशियल। ये वहाँ पे काम करता है। Okay, so this is something that you all have already tested for 25,000 different herbs. डिफरेंट है हमारे पास सिग्नेचर फ्रीक्वेंसीज है। अब हर एक फ्रीक्वेंसी अलग रहता है। सब अश्वगंधा का 10 फ्रीक्वेंसी है, जो बॉर्गन ऐसा, दिस इज ऑलरेडी डेटा इज अवेलेबल। हमारा ह्यूमन का जो ऑर्गन्स जो फ्रीक्वेंसीज है वो भी कैप्चर्ड है। अभी आपने डिसीज का एक बात किए थे क्वेश्चन, अल्जाइमर्स के लिए कोई एक बड़ा कंपनी, ग्लोबल कंपनी 40 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी दे के उस अल्जाइमर्स को क्यूर करने का कोशिश कर रहा है। मतलब डायरेक्टली एनर्जी को उसको यूज कर रहे हैं क्यूर करने के लिए। मालूम नहीं फ्यूचर में सिर्फ एनर्जी से। अभी हमने देखा मसल पेन, बोन पेन के लिए थेरेपीज आ रहे हैं जो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजते हैं, जो जाके वो इलेक्ट्रॉन लेवल्स पे काम करके उसको दर्द को कम करें। ये सब फ्रीक्वेंसीज है, सब एनर्जीज है। अभी पूरा दुनिया इस पे मुड़ जाएगा अभी, बिकॉज पूरा दुनिया क्वांटम में काम कर रहा है। नोबेल प्राइज साइंटिस्ट को मिल रही है इसी थीम पे। अभी क्वांटम आयुर्वेदा भी ऐसे ही बात होगा इंडिया से। So how big is the supplement industry and how big is it going to become in India specifically? इंडिया का पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे लोगों को है जो वेलनेस के ऊपर काम करें। इंडिया में अभी फ़िलहाल सप्लीमेंट्स पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, बिकॉज नॉट मेनी पीपल, नाउ द इंडस्ट्री इज इवॉल्विंग। इसके लिए अभी वो न्यूट्रास्यूटिकल पे बहुत बड़ा काम बात चल रहा है और इंडियन गवर्नमेंट भी उसके साथ आ रहे हैं। तो अगर हम लोग देखें अगला 4-5 साल में, अगर इंडिया का जो सप्लीमेंट बिजनेस है
ये तो $100 बिलियन का हमने रखा है, मतलब गवर्नमेंट ने इसको फोरकास्ट किया है सब मिलके, इंडिया और ग्लोबल में $100 बिलियन न्यूट्रोसिटिकल लाइन पे इसका इतना रेवेन्यू हम लोग कैप्चर कर सकते हैं. इट्स वेरी बिग थिंग बिकॉज इंडिया, आयुर्वेदा इज इंडिया, यहीं से इवॉल्व हुआ. अब जो नया टेक्नोलॉजी हम लोग ला रहे हैं इंडिया से ही लेके आ रहे हैं, तो और ग्लोबल में सब लोग दीवाने हैं आयुर्वेदा का. अभी चाइनीज में भी है चाइनीज आयुर्वेदिक मेडिसिन, लेकिन वहाँ पे है ना 60% ऑफ चाइनीज मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, पीपल आर दे मस्ट यूज दो सप्लीमेंट्स इन चाइना. बट हमारे इंडिया में अभी वो ऐसा नहीं है. हम लोग ज़्यादा फार्मा पे काम करते हैं, रेमेडीज़ ढूंढ रहे हैं, क्यूर ढूंढ रहे हैं, कोई इसका वेलनेस के ऊपर बात ही नहीं करता. बट सेगमेंट इज़ वेरी लार्ज एंड पीपल डेफिनेटली दे विल बी बेनिफिटेड. यहाँ पे सप्लीमेंट का बहुत बड़ा एडवांटेज है. और मैं स्टार्टअप और यंगस्टर्स को बोलूँगा कि भाई वेलनेस के ऊपर फोकस करो, इससे है ना आप अच्छा सा लाइफ दे सके, इस दुनिया में आने का एक वजूद बन सकता है. क्योंकि आयुर्वेदा सो रूटेड इन इंडियन Indian कॉन्टेक्स्ट, राइट? और बट कहीं ना कहीं देयर वाज अ मिथ, या देयर वाज अ ये सेफ नहीं है, सेफ नहीं है, एक्चुअल साइंस नहीं है, नहीं है. बहुत सारी थियोरीज है विच इज वेरी काउंटर इंट्यूटिव, जो हमने अभी बात की. तो एक्चुअली फ्यूचर ऑफ हीलिंग है क्या? आंध्रा गवर्नमेंट ने अभी जो सर्जरीज हो रहा है सब फार्मा इंडस्ट्रीज कर रहे हैं, जो इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, राइट? अभी आयुर्वेदा में हम लोग और क्या कर सकते हैं, बिकॉज ये आंध्रा गवर्नमेंट ने आयुर्वेदिक सर्जरीज को ऑलमोस्ट अप्रूव करने का स्टेज पे आ गया है. इसने थोड़ा सा एक दो ट्रायल्स भी किए हैं पाइल्स के ऊपर, पाइल्स का सर्जरी भी किए हैं ऑन अ नेचुरल वे. इसका मतलब क्या, सुश्रुत तो थे 3500 साल पहले, उन्होंने फर्स्ट आयुर्वेदा कॉन्सेप्ट लेके सर्जरी किया था. उस जमाने में डॉक्टर्स कहाँ थे? सुश्रुत एक ऐसे जैसे भरद्वाज थे, उन्होंने, इनके लीडर हैं जो आयुर्वेदा के लीडर हैं, जो कॉस्मिक एनर्जीज लेके आयुर्वेदा को दुनिया में लेके आए. लेकिन सुश्रुत जो ऐसे हैं जो पहला सर्जरी किया आयुर्वेदा में पूरे दुनिया में पहली बार. तो इसी को वो पॉइंट लेके आंध्रा गवर्नमेंट ने बता रहा है 3500 साल पहले ये सर्जरी हुआ, भाई अभी हमको क्यों नहीं करने दे रहे? वाई वी कांट फोकस ऑन दिस? देयर इज अ क्यूर इन दिस, फाइंड आउट करेंगे. तो हमारा मेडिकल काउंसिल है ना, फार्मा मेडिकल काउंसिल, वो सेफ नहीं है करके आर्ग्यूमेंट चल रहा है. बट आई थिंक वेरी सून दिस इज गोइंग टू हैपन. सो हाउ फार आर वी फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग कि जो हर्बल मेडिसिन है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, इज जस्ट व्हाट लाइक द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और मे बी इवन बेटर? नहीं, फार्मा इंडस्ट्रीज में क्या होता है, इन लोग एक मॉलिक्यूल के ऊपर काम करते हैं. जैसा पैरासिटामोल है, जैसा पैंटाप्रोजोल है, भाई ये खाने से हो जाएगा. भाई ये खाने से कितना साइड इफेक्ट्स होएगा आपको पता है? जैसा हम लोग एक एंटीबायोटिक खाते हैं, अजिथ्रोमाइसिन फॉर एग्जांपल, एजी ये खाते हैं, बीमारी तो इफेक्ट निकल जाता है, बट इसके वजह से आपको नोजिया होता है, हेडेक होता है, डायरिया होता है, ड्रोजीनेस होता है. ये सब साइड इफेक्ट्स है. जब आप सिमिलर एलिमेंट के लिए आप आयुर्वेदिक का कोई ऐसा मेडिसिन खाएंगे, ये सब आपको होता नहीं है, बट इफेक्ट सेम रहता है. इफेक्ट सेम रहता है. कैसे? अभी वो इवॉल्व कर रहे हैं, बिकॉज ऐसे आयुर्वेदिक कंपनीज जो इंडिया में है, इन सब के लिए दवाएं बना रहे हैं. अभी जैसा मैनकाइंड फार्मा है, गैस के लिए, एंटीसिड इसके लिए उन्होंने एक जलजीरा का बेस्ड के ऊपर एक सप्लीमेंट निकाला है. बट इट्स इक्वल टू यू नो क्या करता है, पूरा इंग्लिश है, तो ये आयुर्वेदिक है इंग्रेडिएंट. तो उसका इफेक्ट और इसका इफेक्ट सेम है, रिजल्ट सेम है, बट साइड इफेक्ट्स बहुत डिफरेंट है. आयुर्वेदिक में है ही नहीं साइड इफेक्ट. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स. और एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें, दिस इज रिलेटेबल. देखिए अभी जैसा हम लोग एंटी एसिड के लिए टैबलेट्स खाते हैं, पैंटाप्रोजोल वगैरह खाते हैं. अभी रिसेंटली स्टडीज भी हुआ है, दैट इज लॉन्गर स्टडीज हुआ है, जिस इंसान इस दवाई को कंटिन्यूसली एवरी दिन खाता है, 4-5 साल तक खाता है, तो इसका इफेक्ट जो है डायरेक्टली किडनी के ऊपर पड़ता है. प्रूव आ गया, बहुत सारे आर्टिकल्स है, एविडेंसेस है. इसके वजह से इंडिया में भी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि भाई इसको मत खाइए, इसका इक्विवेलेंट सप्लीमेंट आयुर्वेदा में है, आप इसको इस्तेमाल कीजिए. इसका सब्स्टिट्यूट है जो आयुर्वेदा में है, ये कंपनी बनाती है, उसका नाम है एमलेट, AMLAT, एमलेट टैबलेट. ये सेम जो पैंटाप्रोजोल काम करता है इसी तरह से काम करता है, और ये सिनर्जिक इफेक्ट देता है.
इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ये जितने भी दिन खाएँगे, ये है ना सेफ़ है, इसका प्रूव्ड है, हमने हमारे फैमिली में हम लोग सब इसको इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारा रिलीफ़ मिलता है और इससे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ये एक ऐसा एग्ज़ाम्पल है। और दूसरा एग्ज़ाम्पल हम आपको ये बोल सकते हैं कि भाई रियल एग्ज़ाम्पल हमारे एक फैमिली के साथ हुआ है। जैसा ये आप हम लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं इमीडिएट इफ़ेक्ट के लिए, पेन के लिए भी स्टेरॉइड्स लेते हैं। स्टेरॉइड्स आर लीथल। स्टेरॉइड्स अगर लॉन्ग रन पे आप लेंगे, तो किसी न किसी आपके ऑर्गन को ज़रूर वो इंज्योर करके ही रहेगा। एग्जाम्पल दीजिए स्टेरॉइड्स हाँ, का जो हम लेते ये हैं एग्ज़ाम्पल पेशेंट। है, ये एक मेडिसिन है जो अस्थमा के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो 10-15 साल पहले जो यूज़ करते थे। एक हमारा रिश्तेदार जो उसको रेगुलरली यूज़ कर रहा था, बट वो अभी जवान है, 35 इयर्स है। हमको पता चला कि उसका किडनी एक फेल हो गया है। तो हमने उसको पूरा डेटा स्टडी करके सब किया। आपने ऐसा क्या दवा इस्तेमाल कर रहे थे? बट देयर इज़ स्पेकुलेशन दैट डॉक्टर्स आर टॉकिंग, सिंस यू हैव टेकन दैट स्टेरॉइड्स इन दैट पीरियड ऑफ टाइम, स्लोली इट हैज़ इवॉल्व्ड टू रप्चर ऑफ योर किडनी मेम्ब्रेन्स एज़ वेल। तो ये क्या है? ये देखिए इंग्लिश मेडिसिन का ये एक बात होता है कि भई उन लोग एक एपीआई पे काम करते हैं और बाकी का जो भी साइड इफ़ेक्ट्स है उसके ऊपर काम नहीं करते हैं। उसको करने के लिए फिर दूसरा और एक 2-3 गोलियाँ दे देते हैं। So if there was one global health problem that you would solve at Green Space, what would that be? It is for mental health. Mental health. Why? Why? See now, माइंड जो है, जो ब्रेन है, इट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ योर बॉडी, राइट? ब्रेन में बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, बहुत सारे यू नो न्यूट्रिएंट्स के लिए, हार्मोन्स के लिए वो डिराइव करता है। अगर हमारा ब्रेन ठीक है तो बाकी पूरा ऑर्गन्स को सिग्नल भेजने वाला ब्रेन है, तो वो भी ठीक रहेगा। इसका मतलब, मेरा कहने का ये मतलब है, अगर आप स्ट्रेस है, अगर आपको एंग्जाइटी है, अगर आपको नींद नहीं आती है, तो ये सब फैक्टर से आपका पूरा ऑर्गन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे आप समझिए, रात को आप ठीक से नहीं सोते हैं, तो सुबह में जब उठेंगे आप यू फील वेरी लेथर्जिक, बहुत सारा चीज़ें आएंगे। आप कितना भी कोशिश करो, साउंड स्लीप नहीं है तो नहीं होएगा। तो मेरा ये, हमारा ग्रीन स्पेस का जो गोल है, ऐसा एक अच्छा सा एक सप्लीमेंट बना है जहाँ उनको मेंटल हेल्थ के लिए फ़ायदा हो, नींद अच्छा है, स्ट्रेस एंग्जाइटी ठीक हो जाए, उसके साथ साथ में उनका ब्रेन फंक्शनिंग 100% बेहतर हो जाए। इससे आपका 50% जो प्रॉब्लम्स अभी जो लोग फेस कर रहे हैं, अभी जो अपार्ट फ्रॉम वुमेन हेल्थ, अपार्ट फ्रॉम योर अदर वेलनेस, mental health is becoming a major concern globally. Yes, absolutely. Somebody has to address it. That is what Greenspace wants to address. Wow. Amazing. Thank you so much. And I think बहुत सारे अलग अलग context मिल गए इस conversation में. So hopefully people are aware also हाँ that जी, something like this exists and that there is an option to have preventive solutions rather than just a cure. So what is the one truth about plants, health, or life that you want people to remember you for? प्लांट्स ही जिंदगी देता है इंसान को, Hmm. लाइफ भी बेहतरी बनाता है। ऊपर वालों ने प्लांट्स को इसके लिए डिराइव किया, अगर इंसान बीमार पड़ जाता है तो प्लांट्स आर द रेमेडीज फॉर दिस। जैसा ट्रीज है, रूट्स है, सब है। अब जो हम ये हेल्थ के ऊपर जो काम कर रहे हैं, दुनिया ये जाने कि ग्रीन स्पेस हर्ब्स एक कंपनी है जहाँ पे है ना प्लांट से जो रेमेडीज निकाल के, सप्लीमेंट्स बना के इंसानियत को दे के गया है। Wow. And what about life? लाइफ बहुत बेहतर रहेगा, बिकॉज लाइफ बेहतर बनाने के लिए सप्लीमेंट्स का ज़रूरी है। विदाउट सप्लीमेंट्स देयर इज़ नो लाइफ, बिकॉज टुडे आज का जो लाइफ जो हम लोग जी रहे हैं बहुत एग्रेसिव है हमारा लाइफ में। एवरीथिंग वी वांट इंस्टेंट, एवरीथिंग वेरी फास्ट, वेरी सून। इस चक्कर पे ना हमारे हेल्थ को हम ख्याल नहीं कर रहे हैं। तो लाइफ इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक सेइंग भी है, इफ़ देर इज़ नो हेल्थ देर इज़ नो लाइफ। हेल्थ के ऊपर सबको काम करना है। हेल्थ है तो आपका बड़े बड़े ड्रीम्स भी आप लाइफ में अचीव कर सकते हैं। हेल्थी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम उस सेगमेंट पे काम कर रहे हैं जहाँ हम लोग हेल्थ देना चाहते हैं पूरे दुनिया को। Okay.
इसके बेसिस पे हम लोग एक बात मुझे मैं बोलना चाहता, हम लोग 3 साल पहले इस क्वांटम आयुर्वेदा को इग्नाइट किए, हम लोग डिस्कस किए। ये एक ऐसा कंपनी है जिनका मैं नाम लेना चाहता हूँ, न्यूट्रीफाई टुडे करके। न्यूट्रीफाई जेनी इज ए ये प्लेटफॉर्म which they have got a huge database of this all this formula and all. अमित श्रीवास्तव एक ऐसे दोस्त हैं जो हमारे टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं और उन्होंने हमारा साइंस बैक्ड जो टेक्नोलॉजीज है उनके ज़रिए से हमारा आया और हम दोनों ने मिलके बहुत बड़ा काम कर रहे हैं रिसर्च पे, एविडेंस बेस्ड पे। और न्यूट्रीफाई टुडे, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। उन्होंने हमारे साथ जुड़ के इस क्वांटम का एक जो हमारा ड्रीम है उसको फुलफिल करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है हमारे साथ। मैं उनको भी थैंक्स बोलना चाहूँगा और उनका पूरा R&D टीम और हमारे ग्रीन स्पेस हाउस में जो भी एम्प्लॉयज़ जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स है, रिसर्च है, जो टीम है हमारा काम कर रहा है, मैं उनका बहुत आभारी हूँ और मैं उनसे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे साथ जुड़े रहिए। ये बहुत बड़ा कॉज है दुनिया का, जो हम लोग अच्छा सा हेल्थ देंगे दुनिया को, दुनिया हमें याद रखेगी और उस हिस्सा आप लोग सब बन के रहेंगे मेरे साथ। So thank you so much for joining us, and hopefully people found this conversation helpful. Thank you, Karishma, for such a lovely conversation. Thank you. Thank you so much.